Said that he's just the MC, that's not the way it is. He's the guy who got all the funds together. And Brian introduced me to Sandeep Ghate, who then connected us with all the investors. He's also been a pillar of support. He's part of us. He's drove all the way from Pune, without which I wouldn't be standing here with the model. Thanks to the PR team, the press, the branding team, the production team who have been working day and night for the last month for this reality to happen. Thank you. Thank you. No, nobody. It's better to stand. Good afternoon, everybody. I'm so glad to see so many bright faces, all dying to see the object of great desire and beauty. And for a change, it's not 36, 24, 36. So, this particular journey is quite interesting actually, I'm the owner of many guns, I'm very passionate about guns. And one day I had to fix one of my guns, and I asked the person from Luxor, who have the tanks for the PCBs, that can you recommend a really good armorer for me, because I need to do some modification on a very old Theoban. And they put me on to Pramod. And in my conversation with Pramod in the middle of the night, which was around 11:30 at night, I realized that not only is he an armorer, but he's also a manufacturer and a maker of parts to make guns to order for people abroad. Not a full gun, but to customize guns that people have already bought. And he was being recommended by the parent companies, like FX, some of the best companies in the world. I said, Ghoom fir ke, why are they recommending somebody in India to machine the parts for customizing guns all over the world? I said, this guy can make a gun, which is as good as any in the world. So I asked him, I said, can you make a gun as good as any in the world? He said, yes. So I said, then what the fuck are you doing? I mean, why aren't you making it? So he said, I don't want to deal with the government, which is possibly very sensible. So I said, okay, so if somebody deals with the government, will you make the gun? He said, you get me the licensing, I'll make the gun. And that was the deal. So I dealt with the government, and I walked in with my hat and my cigar, and the government actually listened, strangely enough. So I don't know whether it was me, it was the hat, or it was the cigar. But altogether it actually worked. We got a license in about a year and a half flat for the gun, and the rest is history. And the rest of the time, Pramod and Brian raised the funds for us to actually put up a factory
to hire all these young engineers who are so dedicated and to see the vision of the gun, because there is no such weapon that has been made in this country ever, of this caliber, of this kind, of this precision, of such an international standard that we are so proud of it. So now let's do the honors and unveil the Virgin. Soldiers speak less, act more. So I'm sorry. I'll try to follow that dictum, say a few words, but I'm eagerly and itching to get on with the action part, which is the production, the precision, the proliferation of this gun as it goes out into the society. It's just about two years ago, and we were just sitting together, Pramod, Prahlad, Brian, Sandy, conceptualizing this. And it's amazing how in the last 2 years this has built itself into a world-class product. And you'll be very, very proud that this is not only made in India, it's done at a time when shooting as a sport is peaking in India and internationally. Aside from that, I see a lot of uses of this gun, perhaps in the National Cadet Corps, perhaps in sport, in shooting ranges coming up, in shooting clubs, which is something which is quite common overseas. And as we go along, and as we improve, and as the product improves, there will be many more use cases as this journey that's only started. So with that, I just like to place on record great appreciation for Pramod and his team of Projectron. A whole lot of motivated guys I've met and seen. You guys have only just started, and I wish you great success because this is going to go all the way. And of course, many kudos to Prahlad, to Sandeep, Brian, and the rest of the guys who've been part of this journey. Congratulations. Wish you great success. Thank you. He was Bofors expert. He commanded a Bofors regiment. Thereafter, he had some very illustrious appointments. He was the deputy commandant at the Indian Military Academy, where every officer in the Indian Army gets commissioned from. Thereafter, he was dean of the Army War College. It is based out of Mao, where every officer is taught combat skills and grooming for higher command. So he was the dean of that institution. Thereafter, he retired as ADG, a District Director General of the Rashtriya Rifles. The Rashtriya Rifles is the largest counter-terrorism force in the world. Am I correct, General? There you go. So we have him as the advisor for the past 2 years of our company, and he's been associated with us from day one, and gives his crucial inputs, carries his weight, and wears his rank. Sports rifle of air gun which anybody can use. So having said that, firstly I'll also thank Prahlad Kakarji for giving that motivation and the push to him so that we could see the light of this day. Sir, when you started this, making this rifle, what were the shortcomings that you found in the previous versions of other companies that you said इसको तो fix करना ही है और ये चीज़ fix होगी तो मेरे को मज़ा आएगा और फिर मैं तो क्या आपको ऐसा लगा कि The first factor was about the air, the way it is used in this gun. It's high pressure air which is filled inside the gun. One consistent issue that we've seen is the air leaking from guns. So we wanted to have a design which is leak proof and gives you more happy shooting sessions rather than you having to repair the gun. So while I was doing the mods for guns, I used to get a lot of air guns come to me for repairs. So the gun which is born seeing all the flaws. I wouldn't say everything was a flaw, but how we could overcome that, how we could improvise that. That is how Taron was born. इसमें जो मेटल यूज करते हैं उसके बारे में आप कुछ बताओगे?
Yes, we use aircraft aluminum for this. I'm not getting onto the grade of it, but it's aircraft aluminum. Why? Because we've got to keep the weight light of the gun. Okay. And the barrels we are using are from Lokawater. We have certified Luxfer or other brand bottles on that, which is holding high pressure air. And they have to be certified. Why? Because they are very dangerous to use. Okay. Because of the high pressure that it puts. वो कितने क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर करना प्लान किया है आपका? हमारा मैन्युफैक्चर जो आज है, आज की दुनिया में 1 साल के लिए हम 2000 गन बनाएंगे पहले साल, 500 गन हर क्वार्टर। उसके बाद हम देखेंगे मॉल कैसा है, मार्केट कैसा है, एक्सपोर्ट मार्केट कैसा है, तब तक हमको जानकारी आ जाएगी कि मॉल कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है। लेकिन आज 1 साल के लिए हम 2000 गन आपने एक मॉडल लॉन्च किया, इसके अलावा आप कोई हैंड मॉडल या ऐसा कुछ और मॉडल? 6 मॉडल है हमारे पाइपलाइन में, R&D किए हुए हैं। इस मॉडल के बाद हर हमारा गोल है कि हर 1 साल एक नया मॉडल लॉन्च करें। सर आज के दौर की बात करें तो सर आजकल पिस्टल लेने का ट्रेंड एक चला है, तो क्या आप आगे चल के कोई स्मॉल बनाएंगे गन इस? पक्का पूरा रेंज बनाएंगे, पिस्टल से राइफल से कार्बाइन। पिस्टल शूटिंग जो है हमारा ओलंपिक का स्पोर्ट जो है बहुत बेहतरीन हो गया है, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों हैव बिकम वेरी प्रोफेशनल। पिस्टल हल्का है ना पिस्टल। ये Yes, sir. किसी की पिस्टल जो होता है, नॉट अ फायर आर्म पिस्टल, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ डिजाइन Yes. एलिमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी पुट इन, बिकॉज बहुत भारी हो जाती है जी टैंक वैंक करते हैं, तो एक हाथ से अगर पिस्टल आप करेंगे तो जी। इतनी भारी नहीं होगी। तो हाउ टू मिनिचराइज द पिस्टल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा R&D करना है। स्मॉल पिस्टल बनाएंगे आगे चल के। थैंक यू। 3 किस्म के गन होते हैं, हम्म। पिस्टल, कार्बाइन, राइफल। जी पिस्टल छोटा है, कार्बाइन उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा राइफल। ये कार्बाइन है जो राइफल का काम कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी है इसमें। कार्बाइन दिखता है लेकिन राइफल जैसा आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगा। और इसमें खूबी ये है कि सप्रेसर है, तो आप अगर टारगेट प्रैक्टिस अपने गार्डन में करना चाहते हैं, आपका बंगला है, आपका छोटा सा गार्डन है, उधर आप टारगेटिंग सेटअप करके सेफ्टी देखते हैं, तो आवाज़ सप्रेस इतनी हो जाती है कि आपके नेबर कोई कंप्लेन नहीं करते आप क्या क्या कर रहे हैं, हर शूटिंग कर रहे हैं अपने घर में। उसको सर लेने के लिए कहाँ कहाँ आप लोग वो करेंगे? ऑलमोस्ट सर कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है गन का, तो क्या आप लोग लॉन्चिंग वहीं से करेंगे? Sorry. कोलकाता बहुत बड़ा मार्केट है हाँ। आर्म्स का, हमारा तो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे होंगे डीलर्स। आज के तारीख में लगभग 400 डीलर्स हैं इंडिया में जो एयरगन्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, सब अलग अलग स्टेट्स में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट जो जोन है आपके इसके अंदर, इनके थ्रू हम थैंक यू। सर या प्लीज गो अहेड। ये जो सेफ्टी फीचर्स के बारे में मेरे को समझना था कि अगर गलत हाथ में लग जाए तो वो किसी ह्यूमन को डैमेज कर सकते हैं, उसके लिए आपने कुछ सरकार ने या रिस्ट्रिक्शन? सरकार ने रिस्ट्रिक्शन बनाया है एयरगन्स के लिए। एक तो कैलिबर, जो जितना बड़ा छर्रा हो सकता है, तो इतने छोटे छर्रे में 1.177 छर्रे में ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हो सकता है। अगर आप डिलिबरेटली किसी के आँख में मार दो तो फिर डैमेज हो सकता है, और वो तो आप पत्थर भी उठा के आँख में मार देते हैं तो उससे भी डैमेज हो सकता है। पर ये ज़्यादातर पावर जो है गन का एज रिस्ट्रिक्टेड टू 15 फुट पाउंड एट द बैक, तो इसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, बट एट अप टू 50 मीटर्स इट इज एक्यूरेट, नॉट लीथल बट एक्यूरेट। तो टारगेट के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेपन एंड इट इज नॉट लीथल टू ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स द होल क्राइटेरिया ऑफ दिस। सर माय क्वेश्चन टू इज दैट इसका टारगेट जो पब्लिक है वो कौन है, और क्या आप इसे कोई नॉर्मल इंसान भी खरीदना चाहता है, सो हाउ कैन दे रीच यू, लाइक उस बारे में अगर बात? ये गन जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आधार कार्ड और 18 साल वही क्राइटेरिया खरीदने के लिए। आधार कार्ड चाहिए और 18 साल के ऊपर उम्र चाहिए। इंटरनेशनली भी क्या इसे सेल किया जाएगा एज? हाँ, इंटरनेशनल जो सेल है उनका अलग स्पेसिफिक्स है। जो इंडिया में हमारा रूल है, फलान से तो बोला था 15 जूल्स का आउटपुट आना चाहिए, उससे ज़्यादा हम करते नहीं। अमेरिका में 50 जूल्स का आउटपुट है, 3 गुना ज़्यादा, तो कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो गन तो बेसिक है लेकिन कस्टमाइज करना पड़ेगा। मार्केट के जो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम यूरोप में जाएंगे वहाँ पे भी अलग रिस्ट्रिक्शन,
यूरोप का अलग है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हमारा सबसे ज़्यादा है। 12 जो है हमारे 15 हैं। तो पावर जो है ठीक है हमारा बहुत कम है कंपेयर टू जो विलायत में हुआ है। So both, yeah, please. मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू MRP The market price is 110 and taxes are 60. 1,10,000. 110,000 plus GST. लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस This is No a license. business Without license. You don't need a license. Only Aadhaar card is required. और 18 साल का 18 years of age. You can buy it off the shelf. आप सीधा शेल्फ से खरीद सकते हैं। 1,10,000 इज द कॉस्ट ऑफ बेसिक कार। उसके ऊपर एक्सेसरीज होगी जैसे टेलीस्कोपिक साइट है और साइलेंसर। वो अगर आप डालना चाहते हैं इनको तो दूसरा एक्स्ट्रा। So नाम के बारे में थोड़ा बताएंगे, नाम कोई भी आपके आम इंसान इसे खरीद सकता है? कोई भी कर लाइसेंस सिर्फ लाइसेंस आधार कार्ड वाला और लाइसेंस डीलर वाला और बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए और बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए। नहीं परचेज करें। नो लाइसेंस कोई भी नो लाइसेंस आधार कार्ड और 18 साल का। तो आपका आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। नाम किस तरह से रखा गया है? सपोज मैं ऐसे हथियार खरीदता हूँ और मार्केट में कूपन लेके चलता हूँ और ये कहता हूँ कि मैंने तो आधार कार्ड नहीं नहीं क्या होता है ये डिसिप्लिन रहता है प्रोटोकॉल रहता है। आप अगर इसको पब्लिक में जाके किसी को धक्का दोगे तो आप सीधा अंदर जाओगे। ये आप चाकू लेके रास्ते पे घूमेंगे या आप अंदर ही जाओगे। जैसे ही आपने बंदूक निकाली, तो उसके कुछ कायदे कानून है तो वो आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया आपकी गाड़ी में डिक्की में है तो आपने निकाल के खड़े हो गए रास्ते में सीधा अंदर जाना। वो हमारा क्या कर सकते हैं किसी को आप थ्रेटन नहीं कर सकते। कर सकते ये पर्पस है हॉबी एंड स्पोर्ट का, फोकस उसी का है। जैसे इन्होंने अभी एक सवाल पूछा कि कौन है कैटेगरी, पीपल हु हैव बंगलोज, जिनके फार्म हाउसेज है, जिनके लैंड है, वहाँ पे टारगेट्स लगा के लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसे फील्ड टारगेट कहते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के टारगेट्स आते हैं और आप उसको चैलेंजिंग डिस्टेंस पे रखते हैं। जब आप फ्रेंड्स कॉम्पीट कर रहे हो तो बहुत ही एक मज़ेदार स्पोर्ट है और दिस इज वेयर इसका प्राइमरी यूज। हमें भी बता देते हैं बॉम्बे में 40 शूटिंग गैलरी है, शूटिंग जोन 40 और छोटे छोटे एनक्लोज एरिया। क्योंकि इसको आपको सिर्फ 10 मीटर चाहिए और वो कितने भी नैरो हो सकता है आपका स्ट्रेच, आप वहीं पे शूटिंग कर सकते हैं 10 मीटर से लेके स्कूल्स में भी। इंडियन कॉलोनी कलीना उनके बच्चों के लिए देखो शूटिंग में द कोच। फ्यूचर मार्केट क्या है सर? फ्यूचर मार्केट इंडिया का किस तरह से आप देखते हैं इंडिया में? अभी तो हम सिर्फ शुरुआत की है। फ्यूचर मार्केट बहुत मैं नंबर दे डालना चाहता हूँ कि नंबर से कुछ नहीं। लेकिन अभी आप सोचो कि मोबाइल फोन जब पहले आए थे इंडिया में 16 रुपीज़ इनकमिंग 16 रुपीज़ आउटगोइंग, मार्केट कितना था? ठीक है, तो मार्केट विल इवॉल्व। मार्केट बढ़ जाएगा जैसे हमारा अवेयरनेस आ जाएगा, जैसे और कॉम्पिटिशन आ जाएगा, मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या है पहले साल में 2000 बेचने के लिए हमें कुछ तकलीफ नहीं। एक बस। ये है कि ये क्वालिटी बनाने के लिए क्योंकि हमें मालूम है कि तो फिर पॉपुलर हो जाए इस कंट्री में, हमारी आबादी इतनी है और अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सब बाहर के जो प्लेयर हैं वो अंदर कूद जाएंगे देश में। तो वी हैव टू हैव अ गन दैट इज एज गुड एज दैट। इफ यू डू नॉट हैव अ गन विच इज एज गुड एज इंटरनेशनल गन, then people will not buy a gun because all the international players that come into the market because it's such a big market. 1.3 बिलियन मार्केट है। L&T Those are firearms. फायर आर्म्स, वो तो फायर आर्म है, वी आर नॉट अ फायर आर्म। जितने प्राइवेट प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है, अडानी हो गया, L&T हो गया, और दे आर मोर इनटू फायर डिफेंस। आर्म्स, डिफेंस। डिफेंस सेक्टर को केटर कर रहा है। वी आर केटरिंग टू द रेस्ट ऑफ द वो पॉपुलेशन। कारतूस यूज करते हैं, these are firearms, these are air guns. उसमें आपको लाइसेंस ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। आपको लाइसेंस चाहिए, इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। बिग फर्क है। पर इंजीनियरिंग में फर्क इतना है कि अगर आप 300 बार मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो गैस है, उसका जो एयर है टैंक में, तो एक लीक भी हो जाए ना छोटा सा किसी तरह एट दैट प्रेशर गन यूजलेस हो जाए। तो इतना प्रिसाइज इंजीनियरिंग इसका है कि 40 पार्ट्स हैं गन, 40 मूविंग पार्ट।
each one has to be absolutely tolerances are zero. So is there competitiveness in the market और कोई player है क्या आपके अलावा और you are the one? एयरगन मार्केट में प्लेयर है, ठीक है। एयरगन कैटेगरी में बहुत कैटेगरी मिलते हैं गन। पहला जो मिलता है बेसिक कैटेगरी वो स्प्रिंगर है, उसको तोड़ के सूरा डाल के वापस डालो, वो बड़ा कैटेगरी सिंगल शॉट है, सिंगल शॉट, ठीक है। उसके बाद आता है वो स्प्रिंगर बहुत हो गया, आप किसी भी गन शॉप में जाओगे तब देखेंगे आप। उसके बाद पीसीपी गन आता है, हाई टेक्नोलॉजी, मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इनपुट जो है इसमें हाई एंड एक्यूरेसी, लाइक एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, हाई प्रिसिजन एविएशन ग्रेड इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।